Hello everyone, welcome back to another video. So today I'm here with complete and beautiful analysis of the poem She Walks in Beauty by Lord Byron. So in today's video we are going to talk about explanation of the stanzas and the lines, themes of the poem, figures of speech, symbols used in the poem, vocabulary and tone of the poem. But before we get stuck into the context of poem, let me give you an overview of the poem. So this poem is written by a British romantic poet Lord Byron, and it was first published in Hebrew Melodies in April 1815. Hebrew Melodies is a collection of poems of Lord Byron. So this poem, She Walks in Beauty, was published in this collection, Hebrew Melodies, in April 1815 for the first time. And this poem talks about beauty of a woman, and a woman is compared to different things. Anyways, this poem is of 3 sets, which means that there are 3 stanzas, and every stanza comprises of 6 lines, which makes the poem an 18 lines poem. And this poem is written in iambic tetrameter. There are 4 meters in every line of the poem, and rhyming scheme is A B A B A B in all the 3 stanzas. From one account, it is believed that on night of June 11, 1814, Lord Byron met Mrs. Annie Beatrix Wilmot. He was married to Byron's cousin. She was wearing dress of mourning with spangles. Byron wrote this poem as an ode to her purity. तो कहा जाता है कि 1814 में जून 11 की रात लॉर्ड बायरन एक पार्टी पर गए हुए थे, तो वहाँ पे वो अपने कज़न की वाइफ से मिलते हैं, मिसेस एने. शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस ऑफ मॉर्निंग विद स्पैंगल्स. स्पैंगल्स मीन्स उसके ऊपर काम हुआ हुआ था उस ड्रेस पे, काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी. एंड फिर ये हुआ कि लॉर्ड बायरन जो है रोमांटिक पोइट, वो इस विमेन की ब्यूटी से, इसकी प्योरिटी से इतना इंस्पायर हुए कि he wrote this poem in admiration of her, and this poem is written as an ode to her purity. तो इतना इंस्पायर हुए कि ये पोएम जो है उसने उस विमेन की ब्यूटी और प्योरिटी को एडमायर करने के लिए लिखी है एज एन ओड. Okay, as I told you, there are 3 stanzas. So the first stanza is, She walks in beauty like the night, of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright, made in her aspect ain't her rise, thus may Lord to their tender light, which heaven to gaudy day denies. Okay, let's go for the explanation of stanza 1. In this stanza, speaker compares a woman to clear night sky by using simile like the night which has cloudless weather, and the sky is glittering with the shine of uncountable stars. The woman is a delicate play of dark and light. All her features have an unparalleled combination of light and dark, especially her eyes. She is embodiment of a light which is heavenly, a supernatural light which even heaven denies to grant to the showy earth. Poet uses present tense, which is different from other traditional poems. Combination of dark and light also gives the poem a romantic feature, and like Shakespeare's line, "Shall I compare thee to a summer's day?" Okay, तो ये जो पोएम है, इट इज़ अ रोमांटिक पोएम. और रोमांटिक पोएम्स का ये फीचर है कि रोमांटिक पोइट्स जो थे वो क्या करते थे अपनी पोएम्स में, दे डिड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ट्रेडिशनल पोएम्स एंड ट्रेडिशनल पोइट्स. तो जो पहले से जैसी पोइट्री होती आ रही थी उससे हट के कुछ किया था. दे डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड समथिंग डिफरेंट, एंड सेम इज़ द थिंग इन दिस पोएम. हाउ शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट. अब यहाँ पे पोइट ने प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है. पोइट ने ये नहीं कहा कि शी वॉक्ड इन ब्यूटी, but poet says she walks in beauty, and he uses present tense. Why? Because he wants to admire the beauty, he wants to exaggerate the beauty of women. और poet ये बताना चाह रहे हैं कि the beauty of women is eternal, it's ongoing and it's never ending. तो हमेशा के लिए रहने वाली beauty है. That's why he has used present tense. And then he uses a simile like the night. तो इस simile के ज़रिए the women जो है उसकी ब्यूटी को नाइट के साथ कंपेयर किया गया है. Of cloudless climes and starry skies. Cloudless climes, starry skies. These are examples of alliteration. अब पोइट ने कहा कि ये जो वुमेन है वो एक नाइट की तरह है. किस तरह की नाइट की तरह? ऐसी नाइट विच इज़ क्लाउडलेस, जहाँ पे क्लाउड्स नहीं है, विच मीन्स देयर आर नो डार्क साइड्स, विच मीन्स देयर आर नो हर्डल्स, एंड स्टारी स्काइज. और ऐसी नाइट विच इज़ स्टारी, विच इज़ ग्लिटरिंग विद द स्टार्स. And all that's best of dark and bright, met in her aspect ain't her eyes. पोइट कह रहा है, स्पीकर कह रहा है कि ये जो विमेन है इसकी ब्यूटी क्या है? एक कॉम्बिनेशन है
इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट, जो कि उसके सभी फीचर्स से ये जो डार्क एंड ब्राइट का कॉम्बिनेशन है ये झलक रहा होता है, स्पेशली हर आइज़। तो यहाँ पे एक और रोमांटिक पोइट्स और रोमांटिक पोइट्री के फीचर आ गए कि यहाँ से पहले के जो पोइट्स थे वो क्या करते थे, they always used they always used light and bright things in order to compare beauty or in order to admire beauty। लेकिन यहाँ पे पोइट क्या कर रहा है कि ब्यूटी को एडमायर करने के लिए, ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए सिर्फ लाइट या ब्राइट ही नहीं बल्कि डार्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ट्रेडिशनल पोएम्स एंड पोइट्स। सो दिस मेक्स द पोएम अ रोमांटिक पोएम। और पोइट कह रहा है कि ये जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है डार्क और ब्राइट का, ये उसके सभी एस्पेक्ट, सभी फीचर से झलक रहा था, स्पेशली हर आइज़। द ग्लिटर इन हर आइज़ इज़ एन unparalleled combination of dark and bright. Thus mellow to that tender light which heaven to gaudy day denies। और ये एक ऐसी लाइट है जो कि अर्थली नहीं है, जो अर्थ पे नहीं पाई जाती है, विच इज़ ओनली हेवनली, जो कि सिर्फ हेवन में, सिर्फ जन्नत में पाई जाती है। और ऐसी लाइट कि जो हेवन में डिनाई करती है कि वो दिन को यानी कि अर्थ को दे दे। तो ऐसी लाइट जो अर्थ को भी नहीं मिलती है हेवन से, ऐसी लाइट, ऐसी कॉम्बिनेशन, ऐसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, that's the beauty of this women। Okay, so stanza 2, one shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress or softly lightens over her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place। तो एज ए टोल यू, स्टेंजा 1 में पोइट कह रहा है कि विमेन की जो ब्यूटी है दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क, डार्क एंड ब्राइट। फिर इसी आइडिया को कंटिन्यू करते हुए सेकंड स्टेंजा में पोइट हमें ये बताना चाह रहा है कि कितनी परफेक्ट है वो कॉम्बिनेशन, वो जो डार्क और ब्राइट की कॉम्बिनेशन है वो कितनी परफेक्ट है और कितनी बैलेंस्ड है। इतनी बैलेंस है कि अगर हम इवन एक शेड को ज़्यादा करें या सिर्फ एक शेड को कम करें तब भी वो जो बैलेंस है, वो जो ब्यूटी है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। द नेमलेस ग्रेस, नेमलेस ग्रेस मीन्स ऐसी ब्यूटी जो कि पोइट के लिए नेमलेस है, विच मीन्स पोइट हैज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस। और ये जो ब्यूटी है, ये रेवन ट्रेस मीन्स लॉक ऑफ हेयर, ट्रेस यहाँ पे यूज़ किया है फॉर हेयर। तो ये जो ब्यूटी है वो उसके हर लॉक ऑफ हेयर से झलक रही होती है, इतनी परफेक्ट ब्यूटी है। और सॉफ्टली लाइटन्स और हर फेस, फिर ये ब्यूटी क्या होती है उसके फेस से भी पता लग रही होती है, इसके फेस से भी एक्सप्रेस हो रही होती है। बट थॉट्स सडनली स्वीट एक्सप्रेस, और ये जो फेस है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे थॉट्स जो हैं वो कामली एक्सप्रेस होते हैं। फेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं। फेस की टेल क्वालिटी होती है कि हमें देख के पता लग रहा होता है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो पोइट कह रहा है कि इसकी जो फेस की ब्यूटी है उसको देख के हमें पता लगता है कि इसके जो थॉट्स हैं, इसका जो माइंड है, दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड काम। विद थॉट्स सडनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर, हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस मीन्स द प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो इसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो स्वीट एक्सप्रेशंस हैं, इनको देख के हमें ये पता लगता है कि देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन मीन्स देयर माइंड। कितना अच्छा होगा जब उसके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे होंगे तो उनका प्लेस ऑफ ऑरिजिन, उसके थॉट्स, उसका माइंड कितना प्योर और कितना स्वीट होगा। ओके, सो फिगर्स ऑफ स्पीच आर एलिट्रेशन, हेड हाफ सेकेंड लाइन में, और serenely sweet in the second last line. These are the examples of alliteration. And poet has used the metaphor of dwelling place for her mind. अब dwelling place, dwell करना is not a characteristic of non-living things, लेकिन poet ने यहाँ पे dwelling place कहा है। place is a non-living thing और यहाँ पे place से मुराद उसका mind है। तो dwelling place means एक ऐसी characteristic जो human की है वो उसने यहाँ पे place को दे दी है। So this is an example of metaphor. And there is antithesis in line 1. One shade the more, one ray the less. More, less और फिर shade और ray जो है, they are two different things, but they are brought side by side or they are compared in the same line. So this is an example of antithesis. And metaphor, raven tress. यहाँ पे raven tress poet ने यूज़ किया है
for her hair. और रेवन जो है दैट्स जनरली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स. रेवन जो है वो ब्लैकनेस को शो करता है कि अगर कोई बर्ड ब्लैक हो तो हम उससे कहते हैं कि रेवन. तो ये जो रेवन है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड है, लेकिन इट्स गिवन टू अ नॉन लिविंग थिंग, हर हेयर. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. This is an example of stanza 2. You can pause it and jot it down if you want to. And stanza 3. And on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. Vocabulary है brow means the place above eyes, forehead या फिर eyebrow, दोनों लें तो दोनों ही सही है, forehead और eyebrow. Eloquent means expressive, tints mean shaded effect on face. Okay, and on that cheek and over that brow, poet कह रहा है कि ये जो beauty है that also expresses itself on her cheek and over her eyebrow or her forehead, so soft, so calm yet eloquent. ये जो beauty है it's soft and calm but eloquent, but it's expressive. ये soft है, calm है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा expressive है. The smiles that win, the tints that glow. और इसकी जो smiles हैं winning smiles, ऐसी smiles जो लोगों को win करती है, लोगों के दिलों को win करती है. And the tints that glow. Tint means shaded effect on face. ये लड़कियों को ज़्यादा पता होगा because it's something used while wearing makeup. तो tints that glow. Tint जो है it's something like blush. तो the smiles that win, the tints that glow. उसका ऐसा ब्लश या फिर उसके चेहरे पे ऐसा शेडेड इफ़ेक्ट जो कि ग्लो करता है, जो कि शाइन करता है. तो ये जो सब चीज़ें हैं, उसके चीक्स, उसके आईब्रोज, उसका सॉफ्ट और इलोक्वेंट स्टाइल जो है, उसका स्माइल, उसका टिंट, ये सब किस बारे में बताती हैं? दे टेल अस अबाउट द डेज इन गुडनेस स्पेंट. दे टेल अस अबाउट द डेज ऑफ दिस वुमन विच शी स्पेंट इन गुडनेस, हर वर्चुअस डेज. कि उसके चीक्स, उसके आईब्रोज, उसका इलोक्वेंट जो स्टाइल है, उसके स्माइल्स, उसका टिंट जो है, ये हमें बताते हैं कि वुमेन हैज़ स्पेंट हर डेज वर्चुअसली, कि उसने कितनी अच्छी तरह से, कितने वर्चुअसली और कितने गुडनेस में अपनी ज़िंदगी गुजारी है. अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो. ये हमें बताते हैं कि उसका माइंड कितना पीसफुल है, कितने पीस पे है उसका माइंड. विद ऑल बिलो, और उसके माइंड में क्या है? अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. ये सब चीज़ें हमें ये बताती हैं कि उसका जो दिल है, उसका जो लव है, वो क्या है? इनोसेंट है. अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. सो दीज ऑल थिंग्स टेल अस अबाउट नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ वुमेन बट ऑल्सो द इनोसेंस ऑफ वुमेन, कि वो उसका जो लव है उस वुमेन का कितना इनोसेंट है, कितना मासूम है. सो फिगर्स ऑफ स्पीच, सो सॉफ्ट, सो काम. तो यहाँ पे इसका साउंड आ रहा है. दिस इज इलिट्रेशन. टिंट्स दैट इन द थर्ड लाइन and hurt whose, दोनों में h sound आ रहा है. So these are examples of alliteration. And then poet has used metaphor of eloquent smiles. यहाँ पे सेकेंड लाइन में जो eloquent कहा है, ये smiles के लिए यूज़ किया. तो poet कह रहा है कि इस women की smiles eloquent है. eloquent means जिनमें बहुत फसाहत होती है, something जो बहुत expressive है. तो eloquent होना is a characteristic of human. जैसे किसी की स्पीकिंग वगैरह अच्छी हो तो हम कहते हैं कितना इलोक्वेंट है. तो इलोक्वेंट होना जो है ना, वो इंसानों की खसूसियत है, लेकिन पोइट ने कहा है कि उसकी स्माइल इलोक्वेंट है. तो ये जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है वो इसने स्माइल को दे दी है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. एंड ऑल्सो एक और भी मेटाफर है कि फोर्थ लाइन में, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट. इसका जो चेहरे पे टिंट है, जो ब्लश है, वो हमें गुडनेस में जो उसने दिन गुजारे उनके बारे में बता रहा है. तो टिंट का बताना इज़ नॉट पॉसिबल डेफिनेटली, क्योंकि ये बताना, तो टेल जो है वो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि उसका जो टिंट है, उसका ब्लश है, उसकी स्माइल्स है, वो हमें बता रही हैं. तो ये बताना जो है स्माइल्स और टिंट्स का, दिस इज़ मेटाफर. This was stanza 3. Here's again the same explanation of stanza 3. You can pause it and jot it down. It's the same thing that I told you. Okay, now let's move towards the themes of the poem. कि पोएम के अंदर कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है इतना कि वो इस पोएम के थीम्स बन गए. ब्यूटी एंड हार्मनी, इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी, लव, इनोसेंस एंड मिस्ट्री. ओके, द फर्स्ट वन इज़ ब्यूटी एंड हार्मनी.
Harmony gives perfection, and perfection in turn results in beauty. Beauty is a perfection achieved through harmony. The speaker wonders at majestic beauty of the women. Poet did not use the line "she walks beautifully," but says she walks in beauty to exaggerate the beauty. Her beauty is so vast that it surrounds her when she walks like clouds in atmosphere. Beauty is the best of features in balance and harmony. This harmony is explained in stanza 2. Nameless grace means something beyond the language. This impossible harmony of light and dark is made possible only through the woman's appearance. Power of beauty is in rarity. The interplay is a preserve of heaven, not earth. Beauty is rare because the harmony required is so fragile that a slight change can diminish everything. Light has a common literary association with beauty, but in this poem both light and dark are perfectly harmonized. When we talk about beauty and harmony, तो harmony means to be in balance. तो harmony जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि परफेक्शन देती है, क्योंकि जब सारी चीज़ें बैलेंस में होती हैं, हार्मोनाइज्ड होती हैं, तो परफेक्शन बनती है. हार्मनी से परफेक्शन बनती है और परफेक्शन से ब्यूटी बनती है. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ब्यूटी एंड हार्मनी. और ये भी बात है कि ब्यूटी जो है वो एक ऐसी परफेक्शन है जो सिर्फ हार्मनी के थ्रू मिलती है, विच मीन्स दैट जो सिर्फ बैलेंस और फ्रेजाइल बैलेंस के थ्रू ही हमें मिलती है. द स्पीकर वॉन्डर्स एट मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ द वुमेन. स्पीकर जो है वो इस वुमेन की मैजेस्टिक ब्यूटी से इंस्पायर हुआ है, उस पर वंडर करता है, उस पर हैरत का इजहार करता है, उसको एडमायर करता है, उसको अप्रिशिएट करता है डेफिनेटली. और फिर पोइट ने ये नहीं कहा कि शी वॉक्स ब्यूटीफुली, उसने ये नहीं कहा कि वो अच्छी तरह से ब्यूटीफुली चलती है, बट पोइट सेज शी वॉक्स इन ब्यूटी. इससे हमें एक एग्जेजरेशन मिलती है अबाउट हर ब्यूटी, कि उसकी ब्यूटी है वो इतनी वास्ट है, इतनी वसी है कि जब वो चलती है तो उसकी ब्यूटी जो है वो उसको घेर लेती है. इट्स समथिंग लाइक एटमॉस्फेयर और समथिंग लाइक क्लाउड्स. तो इसकी ब्यूटी लिमिटेड नहीं है बट इट्स अनलिमिटेड, इतना कि इट्स समथिंग लाइक एटमॉस्फेयर जिसमें वो चलती है. और फिर पोइट कहता है कि ब्यूटी जो है वो इन सब फीचर्स का बैलेंस में होना है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंजा में जब पोइट ने कहा कि हर ब्यूटी इज़ बिकॉज ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट, फिर सेकंड स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि इतना परफेक्ट है, इतना बैलेंस्ड है कि अगर हम उसमें स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी चेंज करें तो वो ब्यूटी क्या हो जाएगी, नेमलेस हो जाएगी, विच मीन्स वो डिमिनिश हो जाएगी, वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. तो पोइट कह रहा है कि ये जो परफेक्शन है ये सिर्फ बैलेंस में है, कि जब हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं उसी में हमें क्या मिलती है, ब्यूटी मिलती है. इतना कि अगर हम एक रे कम करें या एक शेड ज़्यादा करें तब भी वो ख़राब हो जाएगी. इतनी हार्मनी की इम्पॉर्टेंस है फॉर ब्यूटी. और फिर पोइट कहता है कि नेमलेस ग्रेस का जो लफ्ज़ यूज़ किया है पोइट ने, ये इससे हमें पता लगता है कि ये जो नेमलेस ग्रेस से हमें पता लगता है कि इस वीमेन की जो ब्यूटी है वो क्या है, नेमलेस है, समथिंग दैट्स इम्पॉसिबल, समथिंग दैट्स बियॉन्ड द वर्ड्स. लेकिन फिर पोइट ने क्या किया है, हमें ये बात क्लियर कर दी है कि ये जो इम्पॉसिबल कम्बिनेशन है ये पॉसिबल बना है कैसे, ओनली थ्रू द वुमेन्स अपीयरेंस. उस वुमेन की अपीयरेंस से ही ये पॉसिबल बना है, वरना ऐसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन का पॉसिबल होना इज़ समथिंग लाइक बियॉन्ड द world, beyond the earth. Beauty is rare because the harmony required is so fragile. देखिए ब्यूटी जो है वो क्या है, रेयर है. ब्यूटी हमें हर जगह नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि ब्यूटी के लिए हमें जो हार्मनी चाहिए, हमें जो बैलेंस चाहिए, वो इतना फ्रेजाइल है, इतना नाजुक है कि थोड़ी सी भी चेंजिंग से वो ख़राब हो जाती है. तो इस फ्रेजाइलनेस की वजह से, इस नाजुक होने की वजह से ब्यूटी जो है वो रेयर है. लेकिन इस विमेन के पास रेयर नहीं है, इसके पास इतनी ज़्यादा है कि शी वॉक्स इन ब्यूटी. शी डजंट वॉक ब्यूटीफुली बट शी वॉक्स इन ब्यूटी. ओके, सो इससे पहले एज आई टोल्ड यू कि ब्यूटी का जो है ना, इससे पहले पोइट्स क्या करते थे कि सिर्फ लाइट से ही एसोसिएट करते थे, सिर्फ लाइट और ब्राइट चीज़ों से एसोसिएट करते थे. बट यहाँ पे पोइट ने लाइट और डार्क दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है इस बात का हमें अंदाज़ा देने के लिए कि हार्मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है. कि लाइट और डार्क, बेशक डार्क है लेकिन इतने अच्छे से हार्मोनाइज हुआ है कि उससे ब्यूटी झलकती है, और ऐसी ब्यूटी जो कि अनपैरेलल्ड है, जो कि बेमिसाल है. सो दिस इज़ द थीम ऑफ ब्यूटी एंड हार्मनी. द नेक्स्ट इज़ इनर ब्यूटी वर्सेस आउटर ब्यूटी. जैसे हमने पोइट की इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की,
तो हमें पता लगा कि पहले वाली स्टैंजा में पोइट ने क्या किया है, सिर्फ आउटर ब्यूटी को एक्सप्रेस किया है, और फिर जैसे ही पोएम एंड होता आ रहा है वहाँ पे आके फिर पोइट ने क्या कि उस आउटर ब्यूटी का एक कनेक्शन बताया है टू हर इनर ब्यूटी, कि उसकी जो आउटर ब्यूटी है जो कि उसके फेस से झलकती है। तो फेस एक ऐसी जगह है जहाँ से उसके एक्सप्रेशंस आते हैं, जहाँ पे उसके एक्सप्रेशंस आते हैं। तो जब उसका फेस ब्यूटीफुल है तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेशंस जहाँ से आते हैं उसका बातिन जो है, उसका माइंड कितना अच्छा होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा। तो यहाँ पे पोइट ने इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी का एक क्या किया है, कनेक्शन पैदा किया है। देयर इज़ अ फीडबैक लूप। इस पोएम के अंदर एक फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप मीन्स दो आइडियाज़ अगर हैं तो उन दोनों आइडियाज़ में से क्या होता है कि हर आइडिया दूसरे आइडिया को इंटेंसीफाई कर रहा होता है। अगर हम ये कहें कि उसकी आउटर ब्यूटी इतनी ज़्यादा है तो इनर ब्यूटी कितनी ज़्यादा होगी, तो ये फीडबैक लूप हो गया। या फिर ये कि उसकी इनर ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी आउटर ब्यूटी से भी क्या होता है, उसकी आउटर ब्यूटी भी इतनी ज़्यादा है कि जो पोइट को अनपैरेलल लगती है, जो पोइट को बेमिसाल लगती है। सो दिस इज़ द फीडबैक लूप के दो आइडियाज़ हैं, दोनों का इतना क्लोज रिलेशन है कि दोनों ही एक दूसरे को इंटेंसीफाई करती हैं। सो द नेक्स्ट थीम इज़ द थीम ऑफ लव. Although we do not find any evidence that Byron has an affair with his cousin's wife, but the theme of love is made strong in the poem by lines, "A heart whose love is innocent, and smiles that win and tints that glow. The woman's love is pure and innocent. Her smiles and tints reveal that her love is entirely pure." तो जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें कहीं से भी ये नहीं लगता है कि बायरन हैज़ एन अफेयर विद हिज कज़न्स वाइफ, लेकिन इस पोएम के अंदर थीम ऑफ लव को पोइट ने कैसे एक्सप्लेन किया है, बाय यूजिंग अ लाइन, "A heart whose love is innocent." द लास्ट लाइन में पोइट कहता है कि "A heart whose love is innocent." कहता है कि उस विमेन का जो हर्ट है वैसा हर्ट है जिसका लव इनोसेंट है। सो दिस इज़ द थीम ऑफ लव. एंड स्माइल्स द विन एंड टिंट्स द ग्लो. तो स्माइल्स और टिंट्स मीन स्माइल्स और ब्लशेस का दे आर कनेक्टेड टू लव. सो इन वर्ड्स को यूज़ करके भी पोइट ने लव के थीम को एक्सप्लेन किया है, लव के थीम को शामिल किया है इन द पोएम. द वेमेंस लव इज़ प्योर एंड इनोसेंट. इस वेमेन का जो लव है वो क्या है, प्योर और इनोसेंट है. फिर वही बात कि पोइट जो है वो इस वेमेन की ब्यूटी को, उसकी प्योरिटी को एडमायर कर रहा है. तो लव का प्योर होना इज़ ऑल्सो समथिंग विच द पोइट एडमायर्स एंड पोइट अप्रिशिएट्स थ्रू आउट हिज पोएम. इनोसेंस, फिर वही कि जैसे लास्ट लाइन में कहा था कि "A heart whose love is innocent." तो इस पोएम के अंदर इनोसेंस का भी थीम है कि पोइट किस तरह से उस वुमेन की इनोसेंस को एडमायर कर रहा होता है. "A heart whose love is pure, a heart whose love is innocent." तो दिस इज़ द थीम ऑफ इनोसेंस. इतना स्ट्रॉन्ग थीम नहीं है बट स्टिल इट इज़. ओके, सैम्बलिज्म मीन्स द यूज़ ऑफ सैम्बल्स को यूज़ करना. तो लाइट जो है वो इस पोएम में, लाइट सिम्बलाइजेस अनपैरेलल्ड ब्यूटी. यहाँ पे लाइट और डार्क दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं, ब्यूटी को सिम्बलाइज करती हैं. इससे पहले एज आई टोल्ड यू सिर्फ लाइट से ही ब्यूटी को सिम्बलाइज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे लाइट और डार्क दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्यूटी को सिम्बलाइज किया गया. एंड स्माइल्स, यहाँ पे फिर स्माइल्स का जो जिक्र था, स्माइल इज़ अ सिंबल ऑफ लव एंड प्योरिटी. एंड टिंट्स जो है, blushes, that also symbolize happiness. Why? Because whenever we are happy we blush. Without being happy we can't blush, or we can't tint, there can't be tints on our skin. So okay, so finally tone of the poem का tone कैसा है. तो this poem is romantic, soft and calm, and here is sincere appreciation. तो poem का tone कुछ इस तरह का है कि it's romantic, it's soft and calm. तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं दे आर ऑल सॉफ्ट एंड काम. इसमें कोई एग्रेसिव और इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं. सो द टोन ऑफ दिस पोएम इज़ सॉफ्ट, काम एंड इट्स सिंसियर एप्रिसिएशन. ये जो पोएम है ये एप्रिसिएशन में ही लिखी थी. तो द टोन ऑफ द पोएम इज़ सिंसियर एप्रिसिएशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. तो हमने क्या चीज़ें डिस्कस करी, टोन डिस्कस किया, सैम्बल्स, थीम्स एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन and all other things. Hope you all understood it well. Okay.